Hello, everyone. Uh, just to give you my brief introduction, I am Aditya Prakash, and I'm the Chief Operating Officer of Esotech Limited. So, just to tell you more about my company, so my company was started by my father back in 1987. We do have a presence in 7 different states of India. And we have been in Odisha since 2006. In fact, we were one of the first developers to start a group housing project in Odisha called Cosmopolis. And now, once again, we are back with another project. But I won't delve into that anymore. So the topic for today is the winners and losers of the New World Order, disadvantaged. I'll just talk about my industry only. बाकी का तो मुझे आइडिया नहीं है उतना. In my industry ना, there are very few winners and very huge number of losers. Just to go back, rewind the past, I'll start with 2016 when our Indian real estate sector was affected by triple trauma, namely goods and services tax, then came demonetization, and then there was RERA Act. And then after that, 3 years later, we suffered COVID-19. So just to remunerate that it was a very stifling situation for this sector. It came to that point that all property transactions were halted when our nation was in lockdown for both the waves. During that time, demand for real estate properties decreased very drastically. ऐसा situation हो गया था that buyers could not meet with brokers and developers directly. Even recovery of existing customers stopped very immediately. क्योंकि banks बंद हो गए, government institutions बंद हो गए, important processes जैसे home loan approval, registration of sale deed, ये सब ड्यू टाइम पे हो ही नहीं पाए. एंड इसी रीज़न की वजह से मेरे इंडस्ट्री के लोगों ने बहुत लॉस और रेवेन्यू फेस किया. इसके बाद ग्रेजुअल रिकवरी भी आई जब सेकंड लॉकडाउन खुला हमारा, एंड फॉर द 8 months काफ़ी अच्छा स्ट्राइव हुआ टुवर्ड्स रिकवरी. एंड जस्ट व्हेन वी थॉट कि दैट रिकवरी इज़ नॉट टू फार, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, another we were hit with another virus, Omicron virus, which again happened कि buyers again retracted from conducting site visits, and again it led to decrease in property transactions. इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब कोविड-19 हुआ था तो सिर्फ प्रमोटर्स को नहीं इफेक्ट हुआ था, मतलब अक्रॉस एंटायर हायरार्की, फ्रॉम द ओनर्स से लेकर आपसे लोएस्ट सेक्शंस, आपके माइग्रेंट वर्कर्स, everyone was equally, if not more, affected. I'll just give you a quick example. When COVID-19 lockdown happened, the most vulnerable section of our sector, the migrant workers, they quickly not only lost their livelihood, but they also lost their जो छत उनके सर के ऊपर से, because all construction work was halted and we couldn't start the work without a proper SOP approved by the state government. But say migrant workers की दिक्कत नहीं थी. It also impacted very severely blue collar and white collar employees. Situation ऐसा हो गया था कि most of the savings held by these sections of the society went down the gutter. After the market crash of 2020, म्यूचुअल फंड की सेविंग्स थी, लोगों के इधर उधर सेविंग्स थी, सब खत्म हो गई. एंड स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक तो उनको ऐसा सिचुएशन था कि उनको ये नहीं पता था कि पैसे सैलरी आएगी इस बार कि नहीं आएगी, टाइम से आएगी कि नहीं आएगी, और कट के आएगी नहीं आएगी. एंड बिकॉज ऑफ दीज अनअनाउंस्ड वेज रिडक्शंस एंड इनसिक्योर पे आउट सैलरीज, employee morale across the sector crashed. It crashed so hard that most of the veterans of this industry who were working for 10-15 years, they just left the industry. इनको लगा कि अब तो नहीं हो सकता कुछ. पहले ही 2016 में इतना गिर गया था,
कोविड-19 और आया, पहली सैलरी नहीं मिल रही थी, अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो दे जस्ट लेफ्ट द इंडस्ट्री 10-15 साल का काम करने के बाद। ऐसा नहीं कि दे weren't happy with the job, they weren't happy with the company. सिचुएशन ही ऐसे हो गया था कि we couldn't get good people to work for us. Not just, I'm not talking about just me, but I'm working in 7 different states. It's the same situation everywhere. थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आफ्टर कोविड-19 मार्केट करेक्शन, there was a sharp rise in construction cost and cost of borrowing. Raw material prices skyrocketed. मतलब स्टील प्राइस, आपका सीमेंट का प्राइस, आपका एल्यूमिनियम का प्राइस, आपका कॉपर प्राइस सब बढ़ गया। मतलब इन सम सिचुएशंस द प्राइसेस हैव डबल्ड। सो ऑलरेडी डिमिनिशिंग मार्जिन्स को कम कर रहा था इंडस्ट्री के ये, ऊपर से इतने एवर ग्रोइंग ओवरहेड्स हैं हमारे कि कुछ इंसेंटिव ही नहीं है यहाँ पे और काम करें। सो आई केम टू उड़ीसा बैक इन 2018 एंड दिस इज व्हाट आई सॉ। रॉ मटेरियल प्राइस तो पहले भी बढ़ रहा था, बट मैंने यहाँ पे देखा कि देयर वाज अ ह्यूज सप्लाई गैप। देयर आर पीपल हु वांट होम्स, हु वांट क्वालिटी इन्वेंट्री, बट देयर आर नो गुड सप्लायर्स ऑफ दीज होम्स। और है तो इट्स नॉट इन अ प्रेफर्ड लोकेशन, इट्स टू आउट ऑफ कंट्रोल, देयर आर लॉट ऑफ हिडन कॉस्ट्स। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन साइड इफेक्ट ऑफ कोविड-19, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी लीजिए इसको, कि a lot of black transactions were stopped because of zero contact measures and social distancing policies by the state government. And जितना मैं सोचता हूँ, probably after 2020, most of the money flowing into the realty sector has been wiped. Another byproduct, I think, is that all the non-serious players of this industry now, जो आ जाते हैं, आई एम श्योर आप सब यहाँ पे काफ़ी घर तो सबने खरीदा ही होगा, तो आप सबने फेस किया होगा ऐसा कभी ना कभी सिचुएशन कि द पर्सन हु सेलिंग यू द प्रोडक्ट या घर आपके सामने, वो आपको क्रेडिबल नहीं लगता, आप विश्वास नहीं होता कि वो बना पाएगा या सारा अप्रूवल हो पाएगा, या कुछ ना कुछ दाल में काला लगता है। सो आफ्टर कोविड-19 मार्केट करेक्शन, most non-serious players were kicked out of the industry. So this in turn led to a sharp rise in quality of inventory which was available in the market, and market went into a consolidation phase, which also increases the credibility of the industry as a whole. Coming back to the migrant workers, थोड़ा सा और मुझे बोलना था उनके बारे में कि जब सिचुएशन इतना डायर हो गया था उनको लेके, most of the labor contractors, subcontractors who employed majority of these laborers, they didn't have the motivation or the resources to help them out. But this is where I'll say the state government of Odisha has been very commendable, very proactive. They collaborated with the official body, real estate body, CREDAI of the Odisha chapter, and they organized multiple successful campaigns for these migrant workers. They made sure that they were compensated for the loss of work. They gave out free rations of food and made sure that all the health and awareness related training that needed to be provided to them, all the hygienic products like sanitizers, masks, was properly distributed to them by the state government. नेक्स्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा सा और मार्केट के ऊपर। जब डिमांड रियल एस्टेट का गिरा आफ्टर कोविड-19, एक और ट्रेंड में चेंज आया। ट्रेंड में ये चेंज आया दैट पीपल स्टॉप्ड बिलीविंग कि हमें एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग में रहना चाहिए, या हमें बंगलों में रहना चाहिए, या विला में रहना चाहिए। एक नया ट्रेंड निकल के आ रहा था कि जब ऐसा सिचुएशन आ ही गया है कि 2-3 महीने घर पे बैठना पड़ेगा, तो क्या करें? हाउ डू वी मेक श्योर दैट आवर चिल्ड्रन का कोई फ्यूचर सफ़र नहीं कर रहा? हाउ डू वी मेक श्योर कि हमारा फ्यूचर सफ़र नहीं कर रहा? तो हमने ट्रेंड देखा कि ग्रुप हाउसिंग की तरफ ज़्यादा लोग अब इंक्लाइन हो रहे हैं खरीदने के लिए घर, एज कम्पेयर टू स्टैंड अलोन विलाज या अपार्टमेंट्स। वो भी इसलिए क्योंकि एक ग्रुप हाउसिंग में और नॉर्मल फैमिली गेट्स ऑल द एम्यूनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ जो उनको चाहिए अपने बच्चों के लिए, जो उनको चाहिए खुद के लिए। लेट्स से योगा क्लास हो गया, आपका ट्यूशन हो गया, कराटे क्लास हो गया। एक नॉर्मल आप घर में रह रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, स्टैंड अलोन बिल्डिंग में रह रहे हैं, आपको ये सब नहीं मिलेगा। और यही चीज़ बहुत फेस किया लोगों ने आगे चल के कोविड-19 में। दिस इज़ वाई वी सॉ कि लास्ट 2020 से लेकर अभी तक वी बिन प्रमोटिंग आवर न्यू प्रोजेक्ट, वी सॉ ह्यूज डिमांड फॉर आवर काइंड ऑफ प्रोडक्ट।
Not just ours, multiple other builders जो हमारे साथ काम कर रहे हैं भुवनेश्वर में, they also face the same kind of reaction. The demand for their product काफ़ी बढ़ गया. As compared to before COVID-19, इतना group housing का नहीं चल रहा था demand. Most people were going for सस्ता है, budget है, तो आप ले लो. Will not shell out 10 lakhs, 20 lakhs more कि एक अच्छा हम लोग group housing में घर ले लें ताकि 20 साल, 30 साल next अच्छे से निकल जाए. बट ये पैंडेमिक के बाद ये बहुत बड़ा आई थिंक एक फैक्टर था विच इज ड्राइविंग द रियल एस्टेट सेक्टर, स्पेशली ग्रुप हाउसिंग, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज. लास्ट में मैं बस ये बोलना चाहूँगा दैट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हैज़ बीन वेरी प्रोएक्टिव एंड कंसर्न्ड अबाउट आवर इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स, and this collaboration between CREDAI and the state government has made sure that the other problems being faced by in different states of India, जैसे झारखंड, यूपी, हरियाणा में, there are lot of problems. And here Odisha में these recession-based symptoms have not been seen in this sector. The prices have been growing very healthy, and the demand is growing over the years. It's almost 18% year-to-year increase of demand. Price is almost reaching 10-12% per annum. So there's another reason why Bhubaneswar did not see the same recession even after COVID, even after triple trauma of 2016, is that Bhubaneswar एक ऐसा शहर है जहाँ पे all over world से लोग आते हैं प्रॉपर्टी खरीदने. Whether you are an Odia, whether you're a Punjabi, whether you're a Bengali, lot of people want to buy a home here, not just for कि यहाँ पे घर है, हमारा फैमिली बाहर है, जब आएंगे तो आके रह लेंगे, बट ऑल्सो बिकॉज दिस इज नाउ क्विकली बिकमिंग एन इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट. भुवनेश्वर मार्केट लास्ट 10 years से मैं बोलूँगा कि वॉज स्टैग्नेंट, एंड लास्ट कुछ ही सालों से रेरा जब से भुवनेश्वर उड़ीसा में काफ़ी एक्टिव हो गया है, अपार्टमेंट एसोसिएशन काफ़ी एक्टिव हो गया है, उसके बाद से मैं बोलूँगा कि देयर हैज़ बीन अ वेरी इट्स अ हॉट केक दिस मार्केट. जस्ट टू कंक्लूड, जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, there's another elephant in the room, the delay in possession. It's been faced across the nation in my industry. So my company has been very, let's say, attentive to this matter, that we have brought a new technology. It's a Korean technology. It's called My1 technology, aluminum shuttering technology. We've made sure that the major issue that the home buyers faced, कि घर नहीं मिल रहा टाइम से, EMI हम लोग दिए जा रहे हैं, क्या करें, इतना तो पैसा नहीं है किसी के पॉकेट में कि इंडिफिनिटली देते रहें. तो ये डिले इन पोजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक कन्वेंशनल काम करता है कोई कंस्ट्रक्शन में, तो उनको 3 छत डालने में इट यूजुअली टेक्स अराउंड 2.5-3 months, 3 floors डालने में. बट यूजिंग आवर टेक्नोलॉजी वी हैव मेड श्योर दैट वी कैन पुट 3 floors in the structure in 1 month. That comes out to 10 days for 1 floor. And इस तरीके की टेक्नोलॉजी में ना कोई ब्रिक वर्क का इस्तेमाल नहीं है. There is no brick work used. आपकी वॉल से लेकर फ्लोर सब RCC होती है. सो कोई प्लास्टर नहीं करना, सिर्फ पुट्टी कर देना है, अनपेंट कर देना है. उसके बाद ये जो सारा, दिस इज नॉट ओनली हेल्प्स इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट फास्टर, बट जैसे सदगुरु जी से बोला कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ मोर क्लीनर एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. तो इस तरीके से लॉट ऑफ जो मलबा निकलता है, आप नॉर्मल कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन करते होगे, आपने देखा होगा, आप बहुत सारे लोगों ने घर बनाया होगा अपना, तो बहुत मलबा निकलता है, बहुत आपका कचरा निकलता है एक बार काम कंप्लीट हो जाता है, स्पेशली आफ्टर फिनिशिंग. ये सब चीज़ें ये टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है. आपका कोई एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं होता इसमें. और जो भी ब्रिक वर्क बनता था वो पहले आपका अनकन्वेंशनल तरीके से इलीगली एक्वायर हो जाता था, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता था. स्पेशली फॉर अ प्रोडक्ट जितना बड़ा हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, इट वुड हैव मेड अ ह्यूज डेंट इन द एनवायरमेंटल कॉजेज दैट सदगुरु जी वाज टॉकिंग अबाउट. सो वी हैव ऑल्सो मेड श्योर कि कंस्ट्रक्शन सिर्फ हमें करने के लिए नहीं करना, हमें करना है इसको सस्टेनेबिलिटी के लिए. दैट्स जस्ट माई लास्ट पीस. थैंक यू एवरीवन.